আচ্ছা তোমাদেরও আছে কস্ট শিট, ঠিক আছে। আচ্ছা আজকে আমরা শুধু করবো র মেটেরিয়াল কনজিউম নিয়ে, মানে कि बैक कैलकुलेशन और नॉर्मल जेटा है सेटा, ठीक है। तो देखो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट में करना है। एक्चुअली हम लोग पूरा कॉस्ट शीट करेंगे, लेकिन उसका कॉस्ट शीटे सब থেকে প্রথম পার্টটা যেটা হচ্ছে এটা র মেটেরিয়াল কনজিউম। আমরা র মেটেরিয়াল কনজিউম করব, ঠিক আছে। আচ্ছা প্রথমে জেনে নাও র মেটেরিয়াল কনজিউম। আমি ফরম্যাটে যাব, কিন্তু মেনলি র মেटेरियल कंज्यूम কাকে বলা হয় সেটা নিয়ে सोचो कि मेरे घर में स्टार्टिंग में 10 केजी चावल था ओपनिंग में, ठीक है। तो हम 50 केजी चावल खरीदे, 10 केजी चावल ओपनिंग में था, 50 केजी चावल हम खरीदे, टोटल कितना होगा 60 केजी। क्लोजिंग में मेरे पास जब मंथ का एंड हुआ उस समय मेरे घर में अभी भी 20 केजी चावल बचा हुआ है, ठीक है। तो बोलो तो इस मंथ हम कितना कंज्यूम किए, 40 केजी हम कंज्यूम किए। तो इसको ही आज यदि हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू यदि पढ़े माने मैन्युफैक्चरिंग में, उसी तरह सेम होता है कि ओपनिंग में जो होता है यूनिट उसके साथ परचेस ऑफ यूनिट को ऐड करना है, क्लोजिंग यूनिट को लेस करना है, तो क्या बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो ये सिंपल वे में जब अगर कोई और ऐड ऑन लेस ऑन नहीं है, तो अब हम लोग फॉर्मूला में बहुत सारा कॉस्ट शीट जब करोगे फैक्ट्री में बहुत और भी एडिशनल खर्चा होता है जो परचेस से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फॉर्मेट ध्यान से याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ঠিক আছে। এবার পারচেজ রিলেটেড যত খরচা আছে তাকে ऐड করব। পারচেজ রিলেটেড খরচা মিন্স क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस মিন্স हो रहा है ক্যারেজ ইনওয়ার্ড। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড মানে কি হচ্ছে, ক্যারেজ অন পারচেজ। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড মানে কি হয়, ক্যারেজ অন পারচেজ মানে মাল কেনার সময় যে ভাড়া তুমি দাও তাকে বলা হয় ক্যারেজ বলো, আর ফ্রেট ইনওয়ার্ড হলে তাকেও ऐड করবে, ঠিক আছে। তো ফ্রেট ইনওয়ার্ড, कैरेज का फ्रेट इनवर्ड इटाके ऐड करते, ओके। तो अब है और क्या खरीदना है, डॉक चार्जेस या इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट किए परचेज की जगह इंपोर्ट किए, अगर ये रॉ मटेरियल डोमेस्टिक है तो परचेज, আর যদি বাইরে কিনা তো ইম্পোর্ট হয়, তাহলে ইম্পোর্ট হলে কি করবে, ইম্পোর্ট ডিউটি দিবে। ট্যাক্স মানে ইম্পোর্ট ডিউটি, মাল আনার জন্য তোমাকে যে ট্যাক্স দিতে হয় তো ওকে বাইরের দেশ থেকে ইম্পোর্ট ডিউটি, কাস্টম দিলে কাস্টম ডিউটি, ঠিক আছে। মাল কেনার জন্য রিলেটেড যত খরচা সব অ্যাড হয়, তাহলে ইম্পোর্ট ডিউটি কাস্টম ডিউটি এটাও অ্যাড হয় পারচেসের সাথে, ঠিক আছে। তো এবার আমি যদি মাল বাইরে থেকে আনাই বা ট্রেন জাহাজ যেখান থেকে আনাই, আমাকে ইন্স্যুরেন্স অন পারচেস করতে হয়, ঠিক আছে। তো মালের ইন্স্যুরেন্স করতে হয়, ইন্স্যুরেন্স অন পারচেস বা ইন্স্যুরেন্স অন ক্যারেজ। ক্যারেজ যে হচ্ছে মাল যে কি আনছে সেই জায়গা থেকে ওইদিকে इंश्योरेंस कराते हैं मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का अगर हम माल लाते समय जो जहाँ से भी ट्रेन से आया तो जो फ्रेट है, ट्रेन पे जो माल आएगा, तो हम लोग जब আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন আমরা রিজার্ভেশন করি আমাদের নিজস্ব আমরা ইন্স্যুরেন্স করাই, দেখবে টিকিটের মধ্যে ইন্স্যুরেন্সও টাকা কাটা হয়। তো মাল আনছে মালও লস হতে পারে, তাই জন্য তার ইন্স্যুরেন্স, ঠিক আছে। তো তারপরে হচ্ছে प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। प्राइमरी মানে একদম ইনিশিয়াল যেটা হয় না, তোমরা যখন প্যাকিং খোলো তো দেখো ইনিশিয়ালি খুব ভালো করে প্যাকিং করা হয়, ঠিক আছে। সেলোটেপ বাইরে থেকে ওইটাকে আমরা ছিঁড়ে বের করি, তো প্রাইমারি প্যাকেজিং চার্জেস ওরা নেয়, তো ওইটাও আমার পারচেজের জন্যই হয়েছে প্যাকেজিং চার্জেস।
और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू পারচেজ, কোনো এমনি এক্সপেন্ডিচার যেটা পারচেজ থেকে রিলেটেড হবে সবকে অ্যাড করবে, ঠিক আছে? তো অ্যাড করার পরে লেস, এবার কিছু মাল তুমি রিটার্ন করে, যে মালটা তুমি রিটার্ন করে দিচ্ছ, যে মালটা ক্লোজিং রয়ে যাচ্ছে সেটা তো কনজিউম হচ্ছে না, তাহলে ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়াল, ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস, যেটা ক্লোজিং এ রয়ে গেছে, রিমেইনিং রয়ে থেকে গেল সেটা, বা লেস রিটার্ন অফ র ম্যাটেরিয়াল, রিটার্ন অফ র ম্যাটেরিয়ালস, র ম্যাটেরিয়ালস কিছু রিটার্ন করে দিই, সেটাও তো ইউজ করলে না, যেগুলো क्लोजिंग में रह गए सेटा यूज कर लेना, जो क्लोजिंग में बच गया उसका तो तुम यूज नहीं की, जो रिटर्न कर दी उसका तो तुम यूज नहीं कर पाए, ठीक है? तो जहां पर तुम यूज नहीं कर पा रहे हो वो सब चीज तो तुम्हारा लेस कर देना है, ठीक है? तो फिर उसके बाद है अगर कुछ लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, देखो लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आर दोस लॉस व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, या जिसका चलते प्राइस एक्चुअली हाइक हो जाता है, ठीक है? तो उसका हम लोग यूनिट को डिडक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू को डिडक्ट नहीं करते, ठीक है? जैसे लीकेज, लीकेज होना, जैसे माल यदि ऑयल हुआ या किस इस तरह लिक्विड कोई चीज़, तो वो थोड़ा हमारा लीक होगा, ठीक है? तो जहाज है उसमें से थोड़ा सा यदि कोई पैकेट फट गया उसके चलते थोड़ा मोड़ा, या माल उठाते और मैंने उसको तुम क्या करते हो, जब हम लोग उसको नीचे लेकर आएंगे, माल उतनी जहाँ से उतारेंगे या जहाज पर रखेंगे उस समय कुछ माल नीचे गिरेगा, ये सब नॉर्मल लॉस है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिस इज अनकंट्रोलेबल लॉस, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? वो उसका कैलकुलेशन नहीं करा, नॉर्मल लॉस का नहीं। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस क्या हो रहा है, जैसे आग लग गया, ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है? तो इस तरह का लॉस को डिडक्ट है, क्योंकि इसको भी तो हम यूज किए क्या, वही तो लॉस हो गया, ठीक है? फिर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो खराब हो गया था उसको तुम सेल के उसको हटा दो, उसको तुम स्क्रैप के हिसाब से बेचे, उसको तुम यूज करके बनाने में, प्रोडक्शन में नहीं यूज किए। एक्चुअली हम लोग র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম মানে আমি বোঝাতে যেটা চাইছি কি, যে ইউনিট যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা প্রোডাকশনে ইউটিলাইজ করেছি, কনজিউম করেছি মানে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে প্রোডাকশনে, প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য, ঠিক আছে? তো তাহলে এইটা তো আমার স্ক্র্যাপ হয়ে গেছিলো, এটাকে আমরা স্ক্র্যাপের হিসাবে বিক্রি করেছি, আমরা ওকে প্রোডাক্ট বানিয়ে বিক্রি করিনি, র ম্যাটেরিয়ালকে অ্যাজ আ স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছি, তাহলে ওইটা আমার প্রোডাক্টে ইউজ হয়নি, তাহলে ওইটাকে সরিয়ে দিও। তাহলে কি দেখলে তুমি, ওপেনিং স্টকের সাথে অ্যাড পারচেজ, যদি বাইরে দেশ থেকে হয় তো অ্যাড ইম্পোর্ট, ক্যারেজ, ফ্রেট ইনভার্টকে অ্যাড করবে, কেন? ক্যারেজ ইনভার্ট মানে হচ্ছে ক্যারেজ অন পারচেজ, ফ্রেট ইনভার্ট মানে ফ্রেট অন পারচেজ, মানে ভাড়া, দুদিক থেকেই হচ্ছে কেনার সময় যে ভাড়া পেমেন্ট করো তাকে বলা হয় ইম্পোর্ট ডিউটি বা কাস্টম ডিউটি। इंश्योरेंस ऑन कैरेज, प्राइमरी पैकेजिंग, ये सब जितना भी खर्चा है ये परचेज का कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, परचेज का कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। देखना तुम्हारा जब बिल आता है तो उसमें प्राइमरी पैकेजिंग ये सब का चार्जेस ऐड करके कॉस्ट प्राइस तुम्हारा प्राइस लिखा रहता है, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है, तुम माने ये सारा चीज इसको कॉस्ट को तुमको इंक्रीज करने के लिए काम में आता है। लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे प्रोडक्शन में, क्लोजिंग स्टॉक बच गया यानी उसका यूटिलाइज नहीं हुआ, রিটার্ন করে দিয়ে সাপ্লায়ার কো, তাহলে যেই মালটা রিটার্ন করে দিয়েছি সেটাকে আমরা ইউটিলাইজ করেছি, করিনি, তাহলে সেটাও সরে যাবে। ফের হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস অফ ম্যাটেরিয়াল, আমি বললাম দু ধরনের লস হয়, নর্মাল লস, অ্যাবনর্মাল লস। নর্মাল লস যাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, ঠিক আছে, যেটা হবেই হবে, ঠিক আছে, লিকেজ যেটা ক্যালকুলেশনে আসে না, ঠিক আছে? তো সেই ধরনের লসকে আমরা কি করব, ওইটাকে রেকর্ড করব না, রেকর্ড করব কাকে, অ্যাবনর্মাল লস, যেমনি লস বাই ফায়ার, ঠিক আছে, লস বাই থেফট, চুরি করে নেওয়া, আগুন লেগে গেলে যে লস হয় সেই ধরনের। যদি আগুন লেগেছে তার মানে ওই প্রোডাক্ট র मटेरियल আমি তো ইউজ করতে পারিনি। अगर आग लग गया जिस रॉ मटेरियल में, तो गोडाउन में माल रखा हुआ था 100 टन, आग लगा उसमें से 50 टन मेरा लॉस हो गया, तो क्या वो 50 टन से बनाए क्या माल? नहीं, तो वो वाला कंज्यूम में नहीं आएगा,
उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप रॉ मटेरियल जो खराब हो गया था उसको स्क्रैप के हिसाब से बेच दी, তাহলে ওইটাও আমি প্রোডাকশনে ইউজ করি। এইটা বাইরে বের হবে। এদিকে আমি পার ইউনিটে কলাম করব, আমরা যখন ফুল কস্ট শিট করব তখন তোমাদের করে দেবো। আমাদের পার ইউনিটে কলাম স্টার্ট হবে র মেটেরিয়াল কনজিউম দিয়ে। কি করবে, এইদিকে তুমি আউটপুট মানে হচ্ছে কত ইউনিট প্রডিউস হয়েছে সেটা লিখবে। তার থেকে ভাবো 10,000 ইউনিটের জন্য এদিকে 10 লাখ টাকা খরচা হয়েছে, বা 10,000 ইউনিটের জন্য 1 লাখ টাকা খরচা, তাহলে একটা ইউনিটের জন্য কত খরচা হচ্ছে, কনজিউম করেছো 1 লাখ ইউনিট কনজিউম হয়েছে, ₹1 লাখ কনজিউম হয়েছে কত ইউনিটের জন্য, 10,000 ইউনিটের জন্য। সাপোজ 1 লাখ ফর 10,000 ইউনিটস, তাহলে পার ইউনিটের জন্য কত হলো 10 টাকা। ডিভাইড করবে র মেটেরিয়াল কনজিউম ডিভাইড বাই ইউনিট প্রডিউস করলে এদিকে 10 রুপিস। বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইছি? তাহলে এদিক থেকে পার ইউনিট অনেকজন কলম করে দেয়, তো পার ইউনিট কলম এদিক থেকে বের হবে, ঠিক আছে? তো सर और एक बार बोलिए ना सर। सोचो तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस माइनस करके 1 लाख आया। हाँ। 1 लाख रुपया कंज्यूम किए कितना यूनिट बनाने के लिए? 10,000। 10,000 यूनिट के लिए। हाँ। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, 10 डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट বেরিয়ে ओ अच्छा समझे समझ में आया? समझे। তো র মেটেরিয়াল কনজিউম তুমি প্রথমে এইভাবে বের করবে। বলো এই দিক থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো, কারোর কোনো প্রবলেম? হ্যাঁ, কি করে র মেটেরিয়াল কনজিউম বের হয়? ঠিক আছে, ওপেনিং স্টক, অ্যাড পারচেজ, অ্যাড এক্সপেন্সেস রিলেটেড টু পারচেজ। কি কি এক্সপেন্সেস হয় তোমরা মুখস্থ করে নেবে। ক্যারেজ ইনভার্ট, ফ্রেট ইনভার্ট, ইন্স্যুরেন্স অন পারচেজ, প্রাইমারি প্যাকেজিং, ইম্পোর্ট ডিউটি, লেস ক্লোজিং স্টক, লেস রিটার্ন, লেস অ্যাবনর্মাল লস, লেস সেল অফ স্ক্র্যাপ করলে তুমি কি পাবে, র মেটেরিয়াল কনজিউম। ওকে, বলো বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে র মেটেরিয়াল কনজিউম বের করার? তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে এটা হলো র মেটেরিয়াল কনজিউম। নেক্সট এবার আমরা আগে যাব। এবার আমি পুরো কস্টে, ঠিক আছে, তোমার ছবি তুললে না না, ঠিক আছে, ওই দিক থেকে ये वीडियो में স্ক্রিনশট নিয়ে हाँ, ছবি हाँ। তুলে, ঠিক আছে? তো এবার দেখো হ্যাঁ লাইট আছে না, একটু এদিকে আলোটা পড়ছে, ওই লাইটটা অফ করলে না অন্ধকার হয়ে যাবে। क्या बंद कर रखा है? हाँ हाँ सर। बंद किया वीडियो? नहीं नहीं हाँ अब আচ্ছা নেক্সট দেখো। নেক্সট আমরা এবার পুরো কস্ট শিটটা করব। এখন তো শুধু কি পার্ট করলাম, র মেটেরিয়াল কনজিউম। যদি পুরো কস্ট শিট করব তখন কি ইমপ্যাক্ট করবে দেখেন। কস্ট শিট অ্যাজ অ্যাট এইদিকে আউটপুট দিয়ে আউটপুট মানে ইউনিট প্রডিউস, কত ইউনিট প্রডিউস। আচ্ছা স্টার্টিং এ র মেটেরিয়াল কনজিউম, এবার আমি র মেটেরিয়াল কনজিউম এবারে এতে লিখবো না, আমরা অলরেডি প্রথম ফরম্যাটে র মেটেরিয়াল কনজিউম বুঝিয়ে দিয়েছি। র মেটেরিয়াল কনজিউম কি করে বের হয় বোঝানো হয়ে গেছে তো? हाँ তাহলে আমি ডাইরেক্ট অ্যামাউন্টে কলামে লিখে দিলাম, কেন এটা আমরা এর আগে ডিসকাস করে নিয়েছি র মেটেরিয়াল কনজিউম কি করে। এবার র মেটেরিয়াল কনজিউমের সাথে কি যোগ করব, কি নেক্সট টাইম কস্ট, মানে স্টেপ বাই স্টেপ হয় একটা প্রোডাকশন প্রসেসে, ডিফারেন্ট স্টেপস হয়, ঠিক আছে? তো কি প্রথম হচ্ছে তোমার র মেটেরিয়াল কনজিউম, তারপরে প্রাইম কস্ট, তারপরে ওয়ার্ক কস্ট, তারপরে কস্ট অফ প্রোডাকশন, তারপরে কস্ট অফ গুডস সোল্ড, তারপরে কস্ট অফ সেলস, তারপরে সেলস। বুঝতে পারলে? তো কস্টে কি আছে, তোমার প্রত্যেক স্টেজে কি খরচা হয়েছে, কোথায় গিয়ে কোথায় ফ্যাক্টরিতে কত খরচা হয়েছে, অফিসে কত খরচা হয়েছে, সেলিং এ কত খরচা হচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউশনে কত খরচা হচ্ছে, সবার একটা ফ্যাক্টরস মানে পুরো ভাগ ভাগ করে তোমার পুরো খরচার ডিটেইলস দেওয়া থাকবে, তাহলে তুমি কস্ট কন্ট্রোল করতে পারবে। বুঝতে পারলে? এবার দেখো তাহলে র মেটেরিয়াল প্রাইম কস্ট বের করার জন্য কি করতে হবে, তোমার র মেটেরিয়াল কনজিউমের পরে ডাইরেক্ট ওয়েজেস, ডাইরেক্ট ওয়েজেস, ঠিক আছে? তো ওয়েজেস কে লেবারও বলা হয়, ডাইরেক্ট ওয়েজেস বা ডাইরেক্ট লেবার, ঠিক আছে? তো একে আর কি নাম হয়, চার্জেবল, চার্জেবল ওয়েজেস বা প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস। আলাদা আলাদা নাম, আমি সব নাম থেকে করে দিলাম তাই কোনো প্রবলেম হয় না, যেমন नाम तीनटे কিন্তু জিনিস একইটাই আছে। डायरेक्ट वेजेस जिसको बोलते हैं उसको डायरेक्ट वेजेस और लेबर दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है? तो डायरेक्ट वेजेस को क्या बोलते हैं, चार्जेबल वेजेस भी बोलते हैं,
या प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, याद है हम लोग ओवरहेड इसके पहले किए थे, इस चैप्टर के पहले हम ओवरहेड किए थे और तुम लोग बोले थे कि कैसे क्वेश्चन पहले कराया जा रहा है। पहले ओवरहेड सिखाना होगा, कौन सा डायरेक्ट वेजेस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट वेजेस होता है। डायरेक्ट वेजेस आर दोज वेजेस व्हिच इज डायरेक्टली माने आइडेंटिफाइड विद द आउटपुट, चार्ज विद आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन से जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, जिसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेबर है, मिस्त्री है, एक फर्नीचर बनाने का यदि 5,000 ले रहा तो 5 फर्नीचर बनाएंगे तो 25,000 लेगा। ठीक है, तो जितना यूनिट होगा उतना उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई है, आउटपुट के साथ तुम वेजेस को, डायरेक्ट वेजेस का तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट वेजेस অন্য নাম কি আছে চার্জেবল ওয়েজেস বা প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস, এটা কি ডাইরেক্ট সেকেন্ড কলাম দি অ্যামাউন্টের ডিটেইলস না, যেমনি ওপেনিং স্টক, অ্যাড পারচেজ লিস্ট, ক্লোজিং স্টক যত কিছু করলাম করে যে র মেটেরিয়াল কনজিউম সেকেন্ড কলামে গেল, তার নিচেই আসবে এদিকে, তাহলে ডাইরেক্ট ওয়েজেস। এবার ভাবো ডাইরেক্ট ওয়েজেস আছে 2 লাখ, কত ইউনিটের জন্য? ডাইরেক্ট ওয়েজেস 2 লাখ কত ইউনিটের জন্য বলো? 10,000 ইউনিটের জন্য আমাদের জন্য। তাহলে একটা ইউনিটের জন্য কত হবে? 20 রুপিস। তো ওইভাবে এইদিকে আউটপুট যা থাকবে ওই দেখবে, তাহলে স্টার্ট হবে আউট পার ইউনিট বের করা র মেটেরিয়াল কনজিউম থেকে, তারপরে ডাইরেক্ট ওয়েজেস সেকেন্ডারি কলাম। এবার হচ্ছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, এইগুলো অ্যাড হবে। ঠিক আছে, তো কিছু লিখছি না, ওইদিকে ব্র্যাকেট পড়ছি না, তার মানে অ্যাড হচ্ছে। ঠিক আছে, তো কি কার সাথে? র মেটেরিয়াল কনজিউমের সাথে। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका दूसरा नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ओके, ये सिर्फ ऐसे बोल दे तो ठीक है कि तुम्हारा चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा बोल दे। कभी कभी इसके बोलने की जगह क्या दिया रहता है, तुमको कुछ नाम दिया रहता है, तुमको याद रखना होगा कि वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैटेगरी में पड़ता है। जैसे रॉयल्टी, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया तो डायरेक्ट सेकंड कॉलम में करना है। अगर लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम नहीं दिया है, डायरेक्टली एग्जांपल देके दिया है, जैसे रॉयल्टी में तुम इतना खर्चा किया, तो रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये एक्सपेंसेस वैसा है ना, इसको बिना किए तुम प्रोडक्शन कर नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए बिना प्रोडक्शन, जैसे रॉयल्टी, रॉयल्टी अगर नहीं पे करो तो जिसका चीज जिसका है, जिसका राइट है उस पे उसका तुम यूनिट प्रोड्यूस कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी ऐसा राइट जिसके बिना तुम कर नहीं सकते, प्रोडक्शन को जो करने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रॉयल्टी के बाद हो रहा है तुम्हारा हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। ये क्या है? कोई ऐसा है सामान बनाने में कुछ ऐसा होगा, कुछ नया ऐसा चीज़ है जो चीज़ मशीन तुम्हारे पास नहीं था, वो मशीन को भाड़ा लेना पड़ा। तो अगर वो मशीन नहीं होगा तो तुम्हारा जो शेप नहीं आएगा, या किसी भी तरह प्रोडक्शन में करने में एक मशीन, जो मशीन का ज़रूरत है तो वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम भाड़ा में लेकर आए, यानी उस मशीन के बिना तुम कर नहीं सकते, तो उसका भाड़ा देना कंपलसरी हो। उसका भाड़ा जो हो रहा है वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जो भी ऐसा खर्चा है जिसके बिना प्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो हो रहा है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट दिया रहता है, ये सब कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट बोल देता डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख, तो डायरेक्टली तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते। लेकिन अगर सम्स में ऐसा दिया है कि रॉयल्टी दिया है, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट दिया है, तब तुमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके उसके अंडर में लिख के फिर बाहर करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर तुमको दे दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख, तो डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखना। ठीक है, लेकिन तुमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देकर लिया, सम्स में क्या दिया रहेगा? सम्स में दिया हुआ है तुम्हारा, सोचो रॉयल्टी दिया है, हायर चार्जेस दिया है। इन सब केस में क्या हो रहा है? इन सब केस में तुम्हारा तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करके उसके अंडर में लिखना रॉयल्टी, तुम्हारा हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ये लिखने के बाद तुम, ঠিক আছে। এবার দেখো, এবার যেমনি সেকেন্ড কলামে টোটাল করলে ফের ইউনিট ভাগো, এটা এবার এসেছে
40,000 টাকা। 40,000 টাকা ওইদিকে ইউনিট আমি অ্যাজুম করেছি 10,000 টাকা। 10,000 তাহলে 40 দিয়ে 10,000 কে ডিভাইড করলে পার ইউনিটে কত হচ্ছে? 4 টাকা। 4 টাকা। তো এইভাবে তোমরা বের করতে পারো, ঠিক আছে? আমরা যখন অঙ্ক করবো তখন দেখবে। এবার দেখো এই তিনটেকে যোগ করলে কি জিনিস? র মেটেরিয়াল কনজিউম, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन के जो जोग करोगे ऐड करोगे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड करने से जो मिलता है उसको क्या बोलता है? प्राइम कॉस्ट। ओके अच्छा, ये जो तीनों है ना, जो ओवरहेड्स में हम लोग पढ़े थे, ये तीनों सब वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल ओवरहेड्स में যেমনি আউটপুট বাড়বে র মেটেরিয়াল, তুমি ভাবো না 10 জনের জন্য তুমি 5 কেজি এ আনলে, ঠিক আছে, সরি 2 কেজি চাল আনলে 10 জনের জন্য, 20 জন হলে 4 কেজি আনতে হবে। 2 কেজি তো 20 জন তো খেতে পারবে না। 30 জন হলে ফের আর 2 কেজি বাড়াতে হবে বা 3 কেজি বাড়াতে হবে। তোমাকে মানে কি হচ্ছে, যেমনি লোক বাড়বে আউটপুট বাড়বে অত তোমাকে মেটেরিয়ালও বাড়াতে হবে। তার মানে কি হচ্ছে, এটা ভেরিয়েবল হচ্ছে। ভেরিয়েবল মানে কি হচ্ছে? অল দোজ এক্সপেন্সেস which can be vary with the output is called variable expenses, ठीक है, যেটা চেঞ্জ করবে in same proportion। এবার डायरेक्ट वेजेस भी एक फर्नीचर बनाने में अगर 2000 लेता, 2 फर्नीचर, 2 बेंच बनाए 4000 लेगा, 3 बेंच 6000 लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यानी ये भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है विद द आउटपुट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सेम, ठीक है। तो ये सब खर्चा वेरिएबल खर्चा है। तो प्राइम कॉस्ट का पहला तो डेफिनेशन है, प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स था, ठीक है। अब आता है यहाँ पर सम खत्म नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको फिर यहाँ से इसको इरेज करके तो हमारा नेक्स्ट पूरा बोर्ड पे ये दिख रहा है, तो प्राइम कॉस्ट पूरा दिख रहा है बढ़िया से। अब हम लोग इसका फोटो खींच ले, नीचे फोटो ले लें, तो एक जन फोटो भी ले लें, ठीक है। हो गया। तो अभी हम लोग लास्ट क्या निकाले? प्राइम कॉस्ट, ठीक। तो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्टे পরে আসে ফ্যাক্টরি ওভারহেড। কি হবে? फैक्ट्री ओवरहेड। नाम से ही पता चला, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। इसमें क्या जाता है? जितना भी खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज ज्यादा, डायरेक्ट वेजेस कहाँ आता है? डायरेक्ट वेजेस आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का पार्ट, याद रखना, ठीक है। तो नहीं तो वेजेस समझ के डायरेक्ट वहां लिख दिया, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वेजेस কোথায় আছে? रॉ मटेरियल कंज्यूम के পরে টাইম কস্ট বের করার সময়। আর ইনডাইরেক্ট वेजेस হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড। প্রথমে এটা অনেক কটা সিঙ্গেল থাকলে আউটার কলামে, এটা সিঙ্গেল ডিটেইলস, এটা আউটার কলাম। এবার হচ্ছে তোমার ফ্যাক্টরি রেন্ট, ঠিক আছে। শেষ হচ্ছে পাওয়ার। পাওয়ার মানে কি হচ্ছে? হিউজ ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন। যেখানটা হিউজ, কোথায় হিউজ ইলেকট্রিসিটি কনজিউম হচ্ছে? যেখানটা মেশিন গুলো চলছে, মেশিন কোথায় চলে? फैक्ट्री। फैक्ट्री में, ठीक है। तो उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन फैक्ट्री, ठीक है।
फिर हो रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत तरह का होता है, देखिए फैक्ट्री से डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड মেশিনারি। প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি দেওয়া থাকলে, প্ল্যান্ট বা মেশিনারি দেওয়া থাকলে তাহলে এটা কোথায় হবে? এটা হবে ফ্যাক্টরি ওভারহেডের মধ্যে। বুঝতে পারলে জিনিসটার সাথে ডেপ্রিসিয়েশন ওয়ার্ডটা না, ডেপ্রিসিয়েশন যদি অফিস ইকুইপমেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে ওটা অফিসের খরচা। রেন্ট যদি অফিসের রেন্ট বলে তাহলে অফিসের দিকে নিবে। फैक्ट्री रिलेटेड আছে কি না, তাহলে प्लांट एंड मशीनरी কোথা থাকে, তাহলে उसका डेप्रिसिएशन दिया तो फैक्ट्री में आना है। इक्विपमेंट का अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो इक्विपमेंट मतलब होता है कंप्यूटर, ये सब कहाँ, टाइपराइटर कंप्यूटर ये सब कहाँ यूज होता है? ऑफिस में, तो वो ऑफिस का खर्चा होगा। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस, देखो सिर्फ इंश्योरेंस लेकर देना, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, फायर इंश्योरेंस ऑफ প্ল্যান্ট মানে ফ্যাক্টরি। ঠিক আছে, তো ফ্যাক্টরি যেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে, প্ল্যান্ট মানে গাছ না, এটা মনে রাখবে। ঠিক আছে, তো প্ল্যান্ট যেমনি গাছ কি ফল দেয় অমনি যে ইন্ডাস্ট্রিজ হয় তাদের প্রোডাক্ট তৈরি, প্রোডাক্ট হচ্ছে ফল। ঠিক আছে, ফ্রুট হচ্ছে কি প্রোডাক্ট, সেটা কোথায় তৈরি হয়? ফ্যাক্টরির মধ্যে। তাহলে ফ্যাক্টরিকে কি বলবো? প্ল্যান্ট। এই কনসেপ্টে প্ল্যান্ট বলা হয়। समझ में आया ना? तो फिर लुब्रिकेंट, ये सब जो होता है मशीन को चला, मशीन को माने कि स्मूथ चलने के लिए जो यूज करने के लिए देता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीस एंड कूलेंट, हाँ ग्रीस, ये सब फैक्ट्री में यूज होता है। समझे? इस तरह फैक्ट्री का सारा खर्चा ऐड करोगे। ठीक है, तो उसके साथ इसको इन कॉलम में ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करना होगा। मतलब जितना काम होना अभी वो स्टार्टिंग में था और जितना क्लोजिंग में बचा हुआ है उसको अगर माइनस कर दिए तो हमको पता चले इस साल कितना काम हुआ है या इस प्रोडक्ट में इतना प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ऐड ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस अगर प्राइम कॉस्ट पे बोला तो प्राइम कॉस्ट निकालते समय। ठीक है, तो और अगर यदि कुछ नहीं बोला है तो वर्क कॉस्ट का होता है। और अगर कोई स्पेसिफिक कर दिया कि वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम एट डायरेक्ट वेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट ओपनिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट लेस क्लोजिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट वर्ड स्पेसिफिक कर दिया जाए, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है या वर्क कॉस्ट पे बोला है तो यहाँ पर ही जनरली वर्क कॉस्ट के समय निकलता है। ठीक है, तो अगर बोल दिया कि WIP एट प्राइम कॉस्ट, हाँ तो WIP एट प्राइम कॉस्ट मतलब हो गया कि प्राइम कॉस्ट के वक्त निकालने के समय, जब प्राइम कॉस्ट निकालने जाओगे तो प्राइम कॉस्ट कब निकालते हो? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम एट डायरेक्ट वेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। তারপরে অ্যাড করবে ওপেনিং WIP এট প্রাইম কস্ট লেস ক্লোজিং WIP এট প্রাইম কস্ট। যদি স্পেসিফিক করে দেয় প্রাইম কস্টে WIP আছে তবে, আর যদি কিছু স্পেসিফিক করে না বা বলে দেয় ওয়ার্ক কস্টে তখন এইদিকেই হয়। নরমালি WIP এদিকেই হয়, বাট স্পেসিফিক করে দিল কি প্রাইম কস্টের জন্য WIP বা দুটো WIP দিয়েছে এট প্রাইম কস্ট এট ওয়ার্ক কস্ট, তাহলে প্রাইম কস্ট বের করার সময় একবার করতে হবে। যখন প্রাইম কস্ট আনসার কবে আসবে? ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস অ্যাড করার পরে, তো ডাইরেক্ট এক্সপেন্সের পরে অ্যাড ওপেনিং WIP লেস WIP ক্লোজিং WIP এট প্রাইম কস্ট করে বের করবে। কিন্তু ইন জেনারেলি কি হয়, ফ্যাক্টরি ওভারের সাথে ওপেনিং WIP শুধু কিছু WIP দেওয়া থাকে বা WIP এট ওয়ার্ক কস্ট দেওয়া থাকে তখন এইদিকেই হয়। ঠিক আছে, তো 99% চান্সেস আছে এইদিকে থাকার। কিন্তু কখনো কেউ যদি তোমাকে কোশ্চেন ঘুরিয়ে যদি WIP দিয়ে দেয় তখন প্রাইম কস্ট দেয়, তাহলে প্রাইম কস্ট বের করার সময় পেয়ে আমরা অঙ্কতে দিই, দুটো এই ধরনের অঙ্ক দিয়ে দেবো, করে নিব। এবার ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস। ওপেনিং থেকে ক্লোজিং প্লেস করার পরে তোমার ফ্যাক্টরি ওভারহেড বাইরে বেরোলো। এবার এটা ভেবে ভাবো বেরিয়েছে 80,000, উপরে আমি কি বলেছিলাম অ্যাজিউম করতে 10,000। 80,000 10,000 ইউনিট তৈরি করলে 80,000 খরচা হচ্ছে, তাহলে একটা ইউনিটের জন্য ফ্যাক্টরি ওভারহেড কত হলো? 8 টাকা। তাহলে यहाँ पर 8 টাকা যায়। समझे? तो पर यूनिट इस तरह से निकालना है, डिवाइड कर करके। তাহলে প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি ওভারহেডকে যোগ করলে তুমি কি পাবে? ওয়ার্ক কস্ট। কি পাবে? वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वर्क ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट को तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलेंगे। ओके, सम्स खत्म नहीं, हम लोग सेल्स तक जाना है।
ठीक है, तो हम पूरा डिटेल्स एक सम्स में इतना कुछ नहीं आ जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ। जब तुम कॉन्सेप्ट समझ लो तुमको हर चीज ही डिटेल्स में समझना होगा। ओके, जब तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तब तुमको हर तरह का सम्स में तुमको जाना होगा। मटेरियल पे भी डब्ल्यूआईपी देगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड परचेस करोगे ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल करोगे तो उसके साथ ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू, तो अच्छा। डब्ल्यूआईपी कहीं भी दे सकता है। हाँ। अगर किसी का स्पेसिफिक कर दे कि मटेरियल पे, तो मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग करते समय निकाल लेना। जब तुमको बोलेगा प्राइम कॉस्ट पे, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के पहले कर देना, और जब कुछ नहीं बोला तो वर्क कॉस्ट के समय करना। ठीक है, तो ये हो रहा है तुम्हारा ये निकालने का। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वर्क कॉस्ट का। चलो मिटाएं इसको, फोटो खींचने फोटो खींचो, ये थोड़ा बड़ा हो। समझे, तो कॉन्सेप्ट पूरा इन लोगों का हो गया ऑलरेडी ना, बस अभी कुछ भी बाद में डिस्कस करते हैं। देखो आज क्लास इम्पोर्टेंट था, इसलिए माने बोल रहे थे कि आज फ्रेश है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ठीक है, ऐसे 11 को जो टाइम दिए ना, सबसे पहला बार तुम लोग पूरा एनर्जी तुम्हारा में ही निकाले, बस तुम लोग एनर्जी का खुद को रिजल्ट देना, समझे। तो तुम लोग को हमने कि तुम लोग का तुम लोग कहाँ कितना नीचे भी होगा तो उसको भी अपना से ऊपर उठने की कोशिश करना। ठीक है, तो वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ওভারহেড, ঠিক আছে। তো মনে রাখতে হবে প্রথমে কি ছিল, র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম, তার সাথে আমি কি করলাম, অ্যাড ডাইরেক্ট ওয়েজেস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, কি পেলাম, প্রাইম কস্ট। फिर প্রাইম কস্টের সাথে আমি কি যোগ করলাম, ফ্যাক্টরি ওভারহেড, কি পেলাম, ওয়ার্ক কস্ট। এবার ওয়ার্ক কস্টের সাথে আমি কি অ্যাড করছি, অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। এবার আমরা কি পাবো, কস্ট অফ প্রোডাকশন। তো দেখো আমরা অফিসে, এবার অফিসের মধ্যে স্টাফ স্যালারি, দেখো ওই ওয়েজেস যেটা ছিল না ওইটা ফ্যাক্টরির পার্টে, আর স্টাফকে স্যালারি, অফিস স্টাফকে স্যালারি, স্যালারি ওয়ার্ড শুধু থাকলে তুমি অফিসে লিখবে, ওয়েজেস থাকলে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস থাকলে তোমার ফ্যাক্টরিতে, আর ডাইরেক্ট ওয়েজেস তোমার র মেটেরিয়াল কনজিউমডে পড়ে। তো তিন দিকে পেমেন্ট হচ্ছে, কেন অফিসের লোককেও টাকা দিতে হবে, ফ্যাক্টরি লোককেও টাকা দিতে হবে, আর তোমার যে ম্যাটেরিয়ালে যে কাজ করছে, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালে যে প্রোডাকশনে ডাইরেক্টলি পার্টিসিপেট করছে তাদেরকেও টাকা দিতে হবে। ঠিক আছে, তো আচ্ছা, তো স্টাফ স্যালারি, ऑफिस स्टाफ सैलरी बस शुद्ध सैलरी दिया था। एदिके डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ रहता है, ऑफिस में मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करके क्या लेता है, फीस लेता है। ठीक है, बोला सर फीस क्यों, इसको सैलरी क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्टर तो ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं है, वो तो डायरेक्शन देने आया, मीटिंग अटेंड करने का पैसा लेता है। ठीक है, सोचो कि तुमको कोई मार्गदर्शक होता है ना, जिसको बोलता है, जो लोग आया खाली मीटिंग में तुमको डायरेक्शन देने के लिए, तुमको बड़ा बड़ा जो होता है, कोई छोटा कंपनी ना, बड़ा बड़ा कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर को उनको बुलाता है कि भाई हम लोग का तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तुम भी रहो। तो वो लोग जो मीटिंग होता है ना उसमें वो लोग गाइडलाइंस देता है, तो उसका लेके उस एक मीटिंग के लिए फीस चार्ज करता है, समझे। तो ये डायरेक्टर फीस, इसलिए सैलरी वर्ड नहीं यूज हुआ, फीस हुआ। ठीक है, तो एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी सिर्फ दिया रहेगा, स्टेशनरी रॉ मटेरियल नहीं, स्टेशनरी क्या है, अच्छा स्टेशनरी तुम्हारा हो रहा है जो पेन पेंसिल जितना भी है, स्केल, तो जो अधिकतर चीज ये सब क्या होता है ऑफिस में ज्यादा यूज होता है, ऑफिस का ही है। अगर कोई स्पेसिफिक कर दिया तभी उसी पे फैक्ट्री पे बोल दिया, फैक्ट्री का तो कोई भी चीज में फैक्ट्री जोड़ दिया तो अलग बात है, तब फैक्ट्री में लिख देना। ठीक है, तो लेकिन इन जनरल जो होता है उसको हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। इन जनरल स्टेशनरी ऑफिस का होता है। ठीक है, तो लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस ये सब ऑफिस में काम चलता है। ठीक है, तो लीगल एक्सपेंसेस ही ऑफिस का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन उसमें भी था ना, डेप्रिसिएशन इसमें भी, लेकिन डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग तो वहां पर आएगा, ऑफिस बिल्डिंग तो यहाँ आएगा, मशीनरी तो यहाँ आएगा, ऑफिस फर्नीचर तो यहाँ आएगा, प्लांट वहां आएगा, मशीनरी इक्विपमेंट यहाँ आएगा। समझ में आया।
तो डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है, किस चीज का डिप्रिसिएशन हो रहा है। डिप्रिसिएशन होते, उसके बाद हो रहा है मैनेजर सैलरी। मैनेजर रहता है ऑफिस में, मैनेजर्स सैलरी। তো আর অনেক কটা আমি যতই করে কোনো ফরম্যাটে যদি অমনি দিলে তো 3-4 পেজ হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে? তা আমি জাস্ট কিছু দিচ্ছি, তারপরে তোমাকে এটা অ্যাজিউম করে পড়তে হবে, বইতে খুলে দেখবে কি কি আর খরচা হয় যেটা অফিসের মধ্যে বা ফ্যাক্টরির মধ্যে যায়, ঠিক আছে তো? আচ্ছা এবার ভাবো এটা হলো তোমার অফিসের খরচা, তোমার হলো ভাবো 1.5 লাখ টাকা। কত ইউনিটের জন্য কি অ্যাজিউম করতে বলেছিলাম? 10,000। তাহলে 1.5 লাখ টাকা যদি 10,000 ইউনিট, তাহলে একটা ইউনিটের জন্য কত হবে? तो उसी तरह इधर 50 लिख देना, समझे? तो अब आते हैं, अगर तुम वर्क कॉस्ट से ऑफिस को ऐड करते हो तो तुमको जो आंसर निकलता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ ठीक है, डिवाइड बाय, आप सोचो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा पड़ा तुम्हारा, सोचो 4.5 लाख, कितना यूनिट के लिए? 10,000। তাহলে একটা ইউনিটের জন্য 45 রুপিস, বুঝতে পারলে? 4,50,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, तो यूनिट ऑफ प्रोड्यूस हो गया, यूनिट प्रोड्यूस तक का खर्चा हम निकाल दिया। अब उसके आगे जाएंगे, ठीक है? तो बोलो यहाँ तक समझ में आया? पिक्चर ले लो यहाँ तक, লিখবো না, লিখবে, ছবিগুলো কাটাবে, ভালো করে লিখবে। এখন তো এখন বোঝো, এখন বুঝতে পারছো কি না সেটা ফের লিখবে, তারপরে ফের ডিসকাস করবো। ठीक है, एक फॉर्मेटिंग कितना कुछ होता। अब देखो हम लोग लास्ट कहाँ तक निकाले थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करना है, तो तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माने फिनिश गुड्स माने जो बना हुआ गुड्स, पहले से ऑलरेडी पिछला बार बना चुके थे, उसको ऐड करना है। देखो इसको डायरेक्ट सेकंड कॉलम, ठीक है, तो इसमें यूनिट नहीं लिखना, ठीक है। लेस क्लोजिंग, ये फॉर्मेट भी समझना होता है किसमें लिखना है किसमें नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका यूनिट्स हम लोग अलग से समझाएंगे, ठीक है। तो फिनिश गुड्स करके जो आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो अब डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस से नहीं करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस से नहीं करना, क्यों? क्योंकि व्हाट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माने जितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसका गुड्स का दाम। तो यहाँ तो यूनिट प्रोड्यूस था, तो जो 10,000 में से 2,000 माल बच गया, तो मतलब 8,000 सेल कर दिए, तो 8,000। आप सोचो कि ये है तुम्हारा 4 लाख, 4 लाख 8,000 का दाम है, तो एक का दाम कितना होगा? बोलो 40। 4 लाख यदि 8,000 है तो कत 50 টাকা। देखो 4 लाख डिवाइड बाय 8,000 करो 50 হচ্ছে तो 50 होता है। तो अभी तक से हम लोग किसके ऊपर, इसके पहले तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक किसको डिवाइड करने बोल रहे थे? यूनिट प्रोड्यूस से। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से किसको डिवाइड करना है? यूनिट सोल्ड।
कितना यूनिट सोल्ड, वर्किंग में तुमको करना होगा। अब यहाँ वाला से नहीं करना, ये तो यूनिट प्रोड्यूस है, ये आउटपुट पर कितना आउटपुट बना, तो वो उसका उसका रोल उसको कब तक डिवाइड करना, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। लेकिन जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके पर यूनिट निकलेगा। समझ में आया क्या बोलने मांग रहे हैं? अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाम से ही पता चला प्रोडक्शन तक का जितना भी खर्चा है वो यूनिट प्रोड्यूस से करना है डिवाइड। आउटपुट बने यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट बनाए थे, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये किसका कॉस्ट है, यूनिट सोल्ड का। तो 4 लाख अगर 8,000 यूनिट सोल्ड का दाम है तो एक यूनिट सेल करने में कितना खर्चा हो रहा है, 50 रुपया। अब होच्छे इसके बाद सोल्ड के ऊपर, ये तो कॉस्ट था, अब इसके ऊपर कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करना पड़ता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड, ठीक है। चलो अब है देखो, कैरेज इनवर्ट नाम सुने थे ना, उसका मतलब क्या बोले थे, दूसरा नाम कैरेज ऑन परचेज। और कैरेज आउटवर्ड माने क्या होता है, कैरेज ऑन सेल्स। याद है ना, हम लोग अकाउंट्स में डिस्कस किए थे। कैरेज इनवर्ट माने कैरेज ऑन परचेज, कैरेज आउटवर्ड माने कैरेज ऑन सेल्स। तो ये कैरेज ऑन सेल्स है, ओके। नेक्स्ट ट्रैवलिंग, जो सेल्समैन है लोग ट्रैवलिंग करने के लिए इसको तो पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या सेल्समैन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, ये सब चीज सेल्समैन, सेल्स से रिलेटेड जितना भी आप इधर आएगा, सेल्समैन सैलरी, सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद हो रहा है रेंट ऑफ वेयर हाउस। देखो, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में आया, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस में आया, रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस माने की है गोडाउन, जहां पर माल बन के रहता है, ठीक है। तो सेलिंग करने के ना वेयर हाउस को लगते हैं, तो या तुम्हारा जो शोरूम जो भी हो, जिससे रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड कोई भी रेंट होगा, ठीक है। तो फिर हो रहा है एक बार तुम्हारा रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। देखो डेप्रिसिएशन हर जगह है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। डिलीवरी वैन क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इतना जन का पैसा जो डूब गया मेरा, बैड डेट, सेल्स कटने से पैसा नहीं देता तो बैड डेट हो जाता ना। कमीशन ऑन सेल्स, अच्छा ऊपर का पोर्शन हम मिटा दें, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है, जो जो छूट रहा है वो लोग वीडियो से तुम लोग फोटो ले लेना, ठीक है। तो कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स पे कमीशन देना पड़ता है ना सेल्समैन को या किसी को भी, कमीशन ऑन सेल्स। एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना सेल्स করার জন্য, ठीक है। तो डिलीवरी वैन्स को कीप करने के लिए तो खर्चा करना पड़ता है। आप कीप ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन से रिलेटेड होगा मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का ऐड करके, अब ये टोटल को ऐड किया, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, सर फोन आ रहा है, 10,000 यूनिट से क्लोज कर दो, 10,000 यूनिट से कि 8,000 यूनिट से, तो 8,000 जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाय 8,000 करोगे तो तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट आ जाता, उससे अगर तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दो तो बोलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करोगे तो क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसके बाद सम्स खत्म नहीं हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो एक लास्ट स्टेप अब बचा हुआ है, एक लाइन गैप देना, ठीक है। तो
तुमको अगर सेलिंग प्राइस दिया है, अगर प्रॉफिट दिया है तो पहले प्रॉफिट लिख देना, अगर सेल्स दिया है तो तुमको सोचो कॉस्ट ऑफ सेल ये हो गया 5 लाख, 5 लाख कितना 5 सॉरी तुम्हारा कितना था 4,80,000 है सपोज 4,80,000 4,80,000 में 8,000 यूनिट सेल किए थे तो पर यूनिट के लिए कितना हो रहा है 60 4,80,000 डिवाइड बाय 8,000 करो ना 60 है ना। अब तुम सोचो 8,000 यूनिट को तुम 5,60,000 में बेचे हो तो कितना में बेचे हो पर यूनिट 5,60,000 में बेचे हो फॉर 8,000 यूनिट को तो 70 में कैसे हो गया 5,60,000 में बेचे हो 8,000 यूनिट को 70 ना। ये बात 70 रुपीस में कहाँ उसका दाम था 60 रुपीस तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट। तो ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा, ये जो होगा ये बैलेंसिंग फिगर होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बोलो समझ में आया कॉस्ट शीट का पूरा क्वेश्चन तुम लोग को छोटा छोटा पार्ट में अलग अलग देगा इसलिए हर एक पार्ट को तुम लोगों को समझाए तुम लोगों से रॉ मटेरियल कंज्यूम एक छोटा क्वेश्चन दे देगा एमसीक्यू उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने दिया या तुमको प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है तुमसे पूछेगा वर्क कॉस्ट या तुमको वर्क कॉस्ट दिया तुमसे पूछेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी पूरा इमेजिनेशन पूरा पिक्चर करना है। जैसे अभी हम लोग करेंगे तो क्या करना है पहला स्टार्टिंग कैसे किए थे हम लोग ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते थे कैसे निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेस एट एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न लेस एबनॉर्मल लॉस लेस सेल ऑफ स्क्रैप करके हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाले थे। उसके साथ डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया था तब क्या निकला था प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया था तो निकला था वर्क कॉस्ट के साथ हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड किए थे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस किए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड किए थे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ प्रॉफिट को या सेल्स दिया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स को माइनस करके जो डिफरेंस अमाउंट है प्रॉफिट निकलता समझ में आया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ये लॉस होने का चांसेस है ही ठीक है क्योंकि तुमको प्रॉफिट को ही ना बेचने का सोचोगे जो हुआ रियलिटी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ तो एस्टिमेशन चलता है। ओके चलो